Hello students, good morning everyone. Welcome to all of you in economics lecture. Chapter number 7, national income. So in this chapter, explain meaning of the national income, definitions of the national income, different methods measuring of national income with circular forms of the national income and difficulties of the national income. So first one, to see introduction of the national income. Before, in your last year, you have already studied national income, means meaning of the national income and one important definitions of the national income. So in this year, detailed study in the national income. So first one, introduction. What is meant by national income? National income is one of the important subject matter of macroeconomics. So first one, remembers and again revise what is meant by macroeconomics. Macroeconomics is the study of aggregate study and there are many subject matter. For examples, economic growth, economic development, theory of income and employment, theory of the distributions, theory of the inflections, etc. So one of the important subject matter means national income. मैक्रो इकोनॉमिक्स के कई सब्जेक्ट मैटर है, उसमें से नेशनल इनकम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है. विथ नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ ऑल फर्म्स, ऑल फैक्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड दियर ऑफिसेस एक्सेट्रा. इसका मतलब होता है कंप्राइज मीन्स समावेश करना. सो नेशनल इनकम में ऐसे कई वहाँ पर एग्जाम्पल्स का, कई कंटेंट का समावेश किया जाता है. सो कौन कौन से कंटेंट? जस्ट एक्सप्लेन द, आपका मार्केट रहेगा, शॉप रहेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहेंगे, कई हमारे डिपार्टमेंट रहेंगे या फिर अलग अलग सेक्टर्स रहेंगे. ठीक है. उसके साथ में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स देखते हैं, वो है नेशनल इनकम इज़ अ कंपोजिट मेजर्स मीन्स कंपोजिट इंडिकेटर्स. सो इंडिकेटर मीन्स मेजरमेंट ऑफ द कंटेंट. सो जस्ट फॉर एग्जांपल्स, एनी परचेस ऑफ द कमोडिटी मीन्स परचेस ऑफ द शुगर. सो परचेस ऑफ द शुगर मीन्स एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ द यूनिट इज अ किलोग्राम, ग्राम, एक्सेट्रा. सो नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ द ग्राम, kilogram? So no. So national income is a composite measures means first one important of the, it's explain the study of the economical activity. Economical activity means productions, consumptions, distributions and exchange. जो हमारी इकोनॉमिकली 4 मेन एक्टिविटीज़ है. सो ये 4 मेन एक्टिविटीज़ को इंडिकेट करने का काम कर रहा है कंट्री में. विच इज़ द प्रोडक्शंस, सेकंड वन डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर एक्सचेंज, कंजप्शंस एंड एक्सप्लेन द इकोनॉमिकल एक्टिविटी मेजर ऑफ द नेशनल इनकम. विथ also is an important of the indicator means welfare of the people. Just for examples and simple examples, in your family's income. Family's income expressed in budget means monthly budget, yearly budget. So why? Because it's explain of the welfare of the family. एक सिंपल तरीके से हम लोग जब फैमिली के इनकम से हमारा मंथली या ईयरली बजट बनाते हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि आपके फैमिली का कल्याण होना चाहिए. सो एज अ सेम रीजन्स इन योर कंट्री means country's national incomes measures and present the budget, and this budget is the main explanations of the welfare of the people, welfare of the countries, etc. And then second one, it's important study national income. So which is the important study? Means NIC. So NIC is full form the National Income Committee, established in 1949. ये जो NIC है, जिसे नेशनल इनकम कमेटी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी. उसके साथ में हम लोग इसका वर्क भी देखते हैं. सो NIC एक्सप्लेन मीन्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ गवर्नमेंट efforts for regular compilations of the national estimate measures या फिर national income estimates. ये जो NIC है उसने क्या किया है? बिगिनिंग गवर्नमेंट एफर्ट, स्टार्टिंग से ही वहाँ पर जो कंपाइलेशंस है, जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स है, एंड गवर्नमेंट के एफर्ट्स कहाँ पे हैं? सो फॉर रेगुलर कंपाइलेशंस ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट. कंपाइलेशंस का एग्जाम्पल्स होता है एक समाविष्ट करना या फिर वहाँ पर एक साथ करना.
सो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सिंपल, द बुक टुक 5 years टू कंपाइल्स, एक बुक बनने के लिए 5 साल लगे. सो एज अ सेम एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेशनल इनकम. National income is a measures every year. So measurement of the specific period means financial year 1st April to 31st March. So this 1st April to 31st March compiles the income different sources, and this income is a explain of the national income. Means explain the NCI. ये इसका मेन वर्क था. With second one, at present at these times explain the CSO. So CSO means Central Statistical Organization, and Central Statistical Organization its main work of, so देख रहे थे CSO का मतलब है Central Statistical Organization, और उसका मेन वर्क क्या है, compiles and publish data on the national income and allied aggregate every year. इसका मतलब है national income पब्लिश करना या फिर उसे कलेक्ट करना एंड हर साल वहाँ पर वो मेजर्स करना, ये नेशनल इनकम का मेन वर्क होता है. अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट सेकंड वन कंटेंस देखते हैं, इसका नाम है मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम. सो मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम मीन्स मॉडर्न इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज द मनी इकोनॉमी. सो मनी इकोनॉमी मीन्स मॉडर्न इकोनॉमी. सो मॉडर्न इकोनॉमी एक्सप्लेन मीन्स नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस ऑफ द मनी. नेशनल इनकम इज अ कलेक्शंस ऑफ द मनी. So simply explain the money economy. Hence, national income is a country is a express of the terms of money. Terms of money means monetary terms, currency, etc. आज की डेट में हम लोग जो भी नेशनल इनकम है उसे एक्सप्रेस करने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, सो करेंसी का यूज़ कर रहे हैं या फिर मनी का यूज़ कर रहे हैं. सो ये मेन वहाँ पर उसका मीनिंग्स रहेगा. उसके साथ में हम लोग देखते हैं एक सिंपल वर्ड में उसे बोल सकते हैं, द टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम. जो भी हमारे कंट्री का टोटल इनकम है उसे हम लोग नेशनल इनकम बताते हैं. इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर. दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन योर मीनिंग्स. means in real terms what is meant by national income. So national income is the flow of goods and services. So in our country's goods and services, these are the main flow and produce in an economy during a specific period, means during a financial year. So हमारी कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विस है जो कंट्री से वहाँ पर प्रोड्यूस है और उसके साथ में उसका मेजरमेंट स्पेसिफिक ईयर में हुआ. सो दिस इज़ द मेन मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम. ठीक है, अभी उसके साथ अभी हम लोग नेक्स्ट वन कंटेंट की तरफ जाते हैं. So next one pointed definitions of the national income. There are many definitions of the national income, but your syllabus has selected 3 definitions, and these definitions are given important explanations of the national income. Means actually you have understand the national income. So first one definition is NIC, National Income Committee. But before, some informations of the NIC. So NIC means National Income Committee was appointed by the government in August 1949. So हमारे इंडिया की बात हम लोग करेंगे. So 1949 में गवर्नमेंट ने NIC ये कमेटी स्थापित की गई थी. एज अ चेयरमैन PC Mahalanobis, and with explain the DR Gadgil with VK RV Rao as a member. राव एंड गार्गिल ये उसके मेंबर्स थे, एंड जो हमारे महालनोबिस हैं वो इसके चेयरमैन थे. सो एक्सप्लेन द डेफिनेशंस ऑफ द नेशनल इनकम. सो अकॉर्डिंग टू NIC, a national estimate measures to the volume of commodities and service. A national estimate measures वॉल्यूम ऑफ द कमोडिटीज़ एंड सर्विस. जो भी नेशनल इनकम का एस्टिमेटली मेजरमेंट्स किया जाता है किसमें, सो कमोडिटीज़ एंड सर्विस में. टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ द टाइम एंड विदाउट डुप्लीकेशंस. It means these measurement are a specific period, is a financial period. Explain the during a specific period means 1st April to 31st March. And most important variables contained of the without duplication. So any commodity not measures
more times. Means it has measure once one commodity is 1 times 1 year. Just for examples, cloth. So cloth means explain the kapasi, thread, cloth, etc. So these are the different commodity, but explain the last final commodity is the cloth. Means avoid क्लोथ, एक्सप्लेन द थ्रेड या फिर कपासी. जब भी हम लोग कपड़ा इसकी बात करेंगे तो हमें सबसे पहले उसे क्या रॉ मटेरियल चाहिए. सो कपासी चाहिए. कपासी से क्या बनेगा? थ्रेड बनेगा, धागा बनेगा, और उसके बाद वहाँ पर उससे कपड़ा बनेगा. जब हम लोग कपड़े का मेजरमेंट्स मीन्स उसका वैल्यू ले रहे हैं तो ये बाकी चीज़ों का वैल्यू ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, तो हम लोग उसे अलग से नहीं ले सकते. तो इसे ही कहा जाता है विदाउट डुप्लीकेशन. मतलब कोई भी कमोडिटी 2 बार काउंट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, यही डेफिनेशन आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी. सेकंड वन डेफिनेशन है प्रोफेसर AC पिगू. सो AC पिगू की डेफिनेशन भी उतनी इम्पॉर्टेंट है. हम लोग उनकी डेफिनेशंस देखते हैं. नेशनल डिविडेंड इज़ दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम. नेशनल इनकम या फिर नेशनल डिविडेंड इज़ दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी. डिविडेंड्स का मतलब होता है लाभ. सो जो भी हमारा इनकम है, जो भी हमारा डिविडेंड है, ये स्पेशली हम लोग क्या बता सकते हैं. सो पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम. एक ऑब्जेक्टिव इनकम का एक कम्युनिटी का पार्ट है. उसके साथ में इंक्लूडिंग ऑफ द कोर्स इनकम डिराइव फ्रॉम अब्रॉड. उसके साथ में अब्रॉड इनकम मीन्स फॉरेन एक्सचेंज. सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू कलेक्शंस ऑफ द इनकम एक्सप्लेन द अब्रॉड इनकम. जो भी हम लोग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से हम लोगों को क्या मिल रहा है. सो अब्रॉड से इनकम मिल रहा है. सो दिस इनकम कलेक्शंस ऑफ द नेशनल इनकम. सेकंड वन कंटेंट एंड कैन बी मेजर इन मनी. सो ये हमें क्या करना है, सिंपली पैसे में मेजर करना है. तो इतना सिंपल डेफिनेशन है, बट उन्होंने एडिशनली क्या दिखाया है कि सो जो भी अब्रॉड से एक्सप्लेनेशन है मीन्स मनी है वो हमें इंक्लूड करना है, और उसके साथ में हमारे कंट्री में जो भी लोग हैं वहाँ से भी हमें इनकम सोर्सेस आ रहा है, वो भी नेशनल इनकम में कलेक्ट करना पड़ेगा. थर्ड वन डेफिनेशन है प्रोफेसर आयरविंग फिशर्स. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आयरविंग फिशर्स, national dividend or income consists solely of service as received by ultimate consumers. national dividend या इनकम इन्हें क्या बताया उन्होंने, कंसिस्ट सोनली सर्विस. एक सर्विस कंसिस्ट है, इसे सर्विस कंसिस्ट डेफिनेशंस भी कहा जाता है. रिसीव बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, ये स्पेसिफिक ये कंज्यूमर्स के साथ में क्या हो रही है, अल्टीमेटली उसे कनेक्ट हो रही है. जैसे भी आप लोग एग्जांपल्स देख रहे हो, इसका मतलब क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल परचेज कमोडिटी एंड सर्विस मीन्स गिवन द मनी, एंड दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द यूज़ ऑफ द सर्विस या फिर स्पेसिफिक यूज़ ऑफ द कंजप्शंस मीन्स वेदर्स फ्रॉम दियर मटेरियल और फ्रॉम दियर ह्यूमन एनवायरनमेंट. सो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, सो मटेरियल्स एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स ह्यूमन एनवायरनमेंट भी होनी चाहिए, मटेरियल्स भी होनी चाहिए और कंजप्शंस भी होनी चाहिए. सो देयर आर 3 डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंस in national income. So first one definition means national income committee, and national income committee simply explain the volume of commodities and service, specific period of the time with measures in a money. ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने सेकंड वन डेफिनेशंस देखी थी जिसका नाम था पिगो. पिगो ने भी क्या बताया है कि नेशनल डिविडेंड इज़ दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी. ये कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव इनकम का पार्ट है. उसके साथ में एडेड द अब्रॉड इनकम. अब्रॉड इनकम मीन्स फॉरेन एक्सचेंज इनकम या फिर इन आवर कंट्रीज पीपल कलेक्शंस एंड सम कलेक्शंस ऑफ द मनी इंक्लूडिंग द नेशनल इनकम. एंड लास्ट वन थर्ड वन डेफिनेशंस मीन्स explain the professor features. So professor features indicate service consist of the definitions. Service means seva, so actually consumptions. So simply explain the materials and environment means human environment. So लोगों का human environment कैसे है और लोग कितनी materials purchase कर रहे हैं, तो इस हिसाब से वहाँ पर explain किया है features.
ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको नेशनल इनकम अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार अच्छे से याद रखो, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। सो एग्रीगेट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम विथ एडेड द अब्रॉड इनकम, ठीक है। उसके साथ हम लोगों ने देखा था NIC, जो स्पेसिफिक वहाँ पर कंपाइल्स का काम करती हैं, और आज के डेट में जो मेन वर्क जाता है जिसका नाम है CSO, मीन सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ तक आपको ये डेफिनेशंस, मीनिंग और इंट्रोडक्शन अच्छे से करने हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।